Hello everyone, my name is Priya. I am from BSc Chemistry Honors Final Year. Today I am here to give my presentation on carbohydrates. This presentation is from our organic chemistry. So now let's start. Carbohydrates. Carbohydrates are important organic compounds and widely distributed in nature. For example, glucose, sucrose, fructose, starch, etc. Carbohydrates may be regarded as hydrates of carbon, and general formula for most of carbohydrates is CnH2ON. This definition was not found correct because many sugars which like raminose C6H12O5 and fucose C6H12O5 not fitted in this definition. These sugars do not have the hydrogen and oxygen atom in 2 ratio 1 ratio as is found in H2O and hence cannot be called hydrates of carbon. जो ये डेफिनेशन थी कि भाई ये हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के, ये डेफिनेशन सही नहीं मानेंगे क्योंकि काफ़ी ऐसे शुगर्स थे जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट ही नहीं होते थे, तो फिर ये कार्बन के हाइड्रेट्स हुए ही नहीं। इसलिए एक नई डेफिनेशन दी गई जिसको मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं। ये क्या कहती है, कार्बोहाइड्रेट्स आर रिगार्डेड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द सब्सटेंसेस दैट कैन बी हाइड्रोलाइज टू आइदर ऑफ देम। इसने बुलाया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, या फिर वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम इनमें से किसी एक के अंदर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। It may be noted that the aldehydic or ketonic group in carbohydrates do not occurs as free aldehyde and keto group. जो इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप की उसमें फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, but usually exist in the form of hemi-acetal and hemi-ketal groups respectively. ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, hemi-ketal and hemi-acetal. Carbohydrates are produced by a process of green plants called photosynthesis. कार्बोहाइड्रेट्स को इन प्रोसेस जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं उसके थ्रू प्राप्त करते हैं। ये प्रोसेस के अंदर क्या रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो हमें C6H2O6 प्लस 6O2 विच मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। और अगर हम इनका एनिमल मेटाबॉलिज्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं इस प्रोडक्ट्स की, तो हमें फिर से यही वाले जो हमारे रिएक्टेंट थे वो मिल जाएंगे, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, बट एनर्जी भी रिलीज होगी इस बार। Now let's see the nomenclature of carbohydrates. Name of most of simple carbohydrates end in OSE, which mean oats like sucrose, fructose, lactose, maltose. Those which an aldehyde group are called aldose, and those which a keto group called ketose. Carbohydrates are also called saccharides. Saccharide is a Greek word saccharin, which means sugar. Classification. Saccharides are classified into three major groups: monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. So, monosaccharides are what? These are simplest carbohydrates and include 3, 4, 5, and 6 carbon sugars. They cannot be hydrolyzed further to smaller units. They are further classified according to number of carbon atoms and nature of carbonyl group present. For example, 3 carbon triose, aldose, and keto triose. तो मोनोसेकेराइड्स हमारे क्या होते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते, इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट. Oligosaccharides. Hydrolysis of these carbohydrates gives two or more monosaccharides units. They are subdivided into following two subgroups: disaccharides. These are hydrolyzed to give 2 moles of monosaccharides. यानी कि जिनके हाइड्रोलिसिस से हमें 2 moles of monosaccharides मिलते हैं उनको हम disaccharides कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज. एंड ट्राईसैकेराइड्स आर व्हाट, जो हमें हाइड्रोलिसिस पे क्या दे, 3 मोल्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे, उनको हम क्या कहते हैं, रैफिनोज. पॉलीसैकेराइड्स. These are high
दीज आर हाई मोलिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स। इन जो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका मोलिकुलर वेट जो होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर monosaccharides and oligosaccharides. So polysaccharides are high molecular weight carbohydrates having general formula C6H10O5N, where N lies in between 300 to 1 Kelvin. Sorry, 1 K. These are tasteless and water insoluble substances, while monosaccharides are sweet in taste and water soluble. Polysaccharides gives many monosaccharide units on hydrolysis. जो हमारे polysaccharides होते हैं वो हमें hydrolysis होने पर क्या देते हैं, बहुत सारी monosaccharide units देते हैं. For example, starch. Now, वट आर शुगर्स? शुगर्स कौन क्या होते हैं? तो आल मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स जो होते हैं वो हमारे शुगर होते हैं, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड केन शुगर्स. ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन वाटर सॉल्युबल सॉलिड्स विच आर स्वीट इन टेस्ट. दीज आर कॉल्ड शुगर्स. नॉन शुगर क्या होते हैं? आल polysaccharides such as starch, cellulose are amorphous, water insoluble and tasteless. These are called non sugars. रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं हमारे? तो जो शुगर्स फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे उन शुगर्स को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स. फॉर एग्जांपल आल मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज. नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं? द शुगर्स विच डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. फॉर एग्जांपल माल्टोज एंड लैक्टोज. मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? These are colorless, water soluble, sweet in taste, and cannot be hydrolyzed to smaller molecules. They occur either in free or combined state and contains 3 to 4 carbon atoms. These are of two types, aldose and ketose. Aldose containing an aldehyde group and ketose containing an keto group. Now these are further classified on the basis of number of carbon atoms and type of carbonyl group. Aldotriose. Aldo, as the name suggests, it belongs to aldehyde group. Triose means 3 carbon atoms. For example, glyceryl aldehyde. It has one chiral center and exists in two enantiomeric forms D and L, dextro and levo. ये हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके इसके अंदर ये एक ही कायरल कार्बन एटम है, तो इसके दो जो हैं स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स बन जाएंगी, डी ग्लिसरील एल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरील एल्डिहाइड, वेयर डी सजेस्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एल फॉर लीवो रोटेटरी. एल्डोटेट्रोज. एल्डो मीन्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप को ये बता रहे हैं. टेट्रोज मीन्स 4 कार्बन. एल्डोटेट्रोज हैव 2 डिसिमिलर कायरल कार्बन एटम. टेट्रोज के अंदर 2 डिसिमिलर कायरल कार्बन एटम होते हैं and hence 4 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स आर पॉसिबल. 4 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स कैसे बनी? सो बेसिकली हम स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स की भाई कितनी संख्या होगी, 2 4 6, ये पता लगाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, जितने हमारे कायरल कार्बन होते हैं उनको 2 की पावर में रख देते हैं. तो 2 कायरल कार्बन थे तो उनको हमने 2 की पावर में रखा तो क्या कितना मिल गया? 4. तो इसकी कितनी फॉर्म हो जाएगी? 4. ये इसकी 4 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं. डी एर्थ्रोज, डी थ्रियोज, डी एर्थ्रोज, एल थ्रियोज, सॉरी एल एर्थ्रोज. नाउ कीटोटेट्रोज. कीटो यहाँ पे हमारे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है ये बताएगा. टेट्रोज मीन्स 4 कार्बन एटम्स. Ketotetros have only one chiral carbon and hence only 2 stereoisomeric forms are possible. So these are the stereoisomeric forms of ketotetros, D-erythrulose and L-erythrulose. फोर्थ है एल्डोपेंटोज. 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे. एल्डो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा. एल्डोपेंटोज कंटेन्स 3 chiral carbon and exist 8 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स. 2 to the power 3 क्या हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा. सो ये इसकी जो 4 है हमारी स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं डी राइबोज, डी अर्बिनोज, डी जाइलोज, डी
लायोसोल। ये जो है हमारे डी सीरीज से बिलोंग करते हैं। जो बाकी की चार और हो जाएंगी हमारी, वो क्या हो जाएंगी, एल सीरीज से बिलोंग करेंगी। वो इन्हीं की मिरर इमेज हो जाएंगी। सो द रिमेनिंग फोर एल्डोपेंटोज हर मिरर इमेज ऑफ दीज मेंशन्ड शुगर बिलोंग्स टू एल सीरीज। फिफ्थ है एल्डोहेक्सोज। हेक्सोज मीन्स सिक्स कार्बन एटम। दीज contains four chiral carbon and exist in 16 stereoisomeric forms. लाइक ये इसकी चार हमारी ये हो जाएंगी डी सीरीज से बिलोंग करने वाली, एंड चार ये हो जाएंगी। और जो बाकी की चार हमारी स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स हो जाएंगी, सॉरी 8 स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स हो जाएंगी, वो इन्हीं की मिरर इमेज हो जाएंगी। थैंक यू।